Students, today we will read about the evolution of the slavery. In previous video, we had read about the condition of women in France and we had read about the Olympe de Gouges और उन्होंने जो डिक्लेरेशन किया था उसके बारे में हमने स्टडी की थी. अब हम देख रहे हैं एबोलिशन ऑफ स्लेवरी. One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin reign was the abolition of slavery in French colonies. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and Saint Domingo were the important supplies of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. But reluctance of Europeans to go and work in a distance and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations. So this was met by triangular slave trade between Europe, Africa and Americas. तो ये स्लैब्स की ज़रूरत होती थी और ये इन फील्ड्स में वर्क करते थे. यहाँ पे जो स्लैब्स की ज़रूरत पड़ती थी यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका से इनकी ज़रूरत पड़ती थी और यहाँ से सप्लाई किए जाते थे. द स्लैब ट्रेड बिगेन इन द 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coasts where they bought slaves from the local captains. Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. तो यहाँ पे अफ्रीका से लोगों को लाया जाता था. स्लैब्स को टाइटली इनको पैक करके 3 months की जर्नी होती थी. बहुत बुरी कंडीशन इन स्लैब्स की हो जाती थी और उनको सोल्ड किया जाता था. किनको? प्लांटेशन ओनर्स को सोल्ड कर दिया जाता था, लोगों को सोल्ड कर दिया जाता था. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लैब लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफी, इंडिगो. तो इनकी डिमांड काफ़ी थी. पोर्ट सिटीज लाइक बोर्ड्स एंड नैंट्स ओड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू फ्लोरिशिंग स्लैब ट्रेड. तो ये स्लैब्स को अफ्रीकन कंट्रीज से लाना, वहाँ से सेल करना यहाँ पर, तो इससे ये एक जो है एक फ्लोरिशिंग बिजनेस हो गया था स्लैब्स को बेचना. Throughout the 18th century, there was a little criticism of slavery in France. तो फ्रांस में इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट हो गया था. And the National Assembly held long debates about whether the rights of men should be extended to France, a subject including those in the colonies, but it did not pass any law, fearing opposition from businessmen whose income depended on the slave trade. It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession. तो 1794 में इनके लिए कन्वेंशन पास किया गया और जितने भी फ्रांस में ओवरसीज पोसेशन के थ्रू स्लैब्स थे उन सभी को फ्री कर दिया गया. This is however turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery and plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interests. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. तो स्लैवरी फाइनली कब एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया फ्रांस में? 1848 में हटा दिया गया. फर्स्ट उनके लिए 1794 में प्रोसेशन किया गया और 1848 में ये फाइनली एबॉलिश किया गया. ये आप देख रहे हो, ये स्लैब्स जो हैं वर्क करने के लिए अफ्रीकन कंट्रीज से
लाए जाते थे, बहुत बुरी कंडीशन में ये रहते थे। तो ये फिगर में आप देख रहे हो एमेंसिपेशन ऑफ स्लैव्स। दिस प्रिंट ऑफ 1794 डिस्क्राइब द emancipation of slaves. The tricolor banner on top carries the slogan "The Right of Man." The inscription below read, "The freedom of the unfree." A French woman prepared to civilize the African and American Indian slaves by giving them European clothes to wear. तो ये आप देख रहे हैं इस पोर्ट्रेट के थ्रू उनके कंडीशन, लिविंग स्टाइल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रीड, दैट इज द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। सो कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ पीपल वेयर, लैंग्वेज दे स्पीक और बुक्स दे रीड? तो पॉलिटिक्स के थ्रू यहाँ पे ये चेंजेस आए थे। The year following 1789 in France saw many such changes in the life of men, women and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass law that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. One important law that came into effect soon after the storming of Versailles in the summer 1789 was abolition of censorship. तो ये पॉइंट दिया गया है कि जो रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, उसके बाद कुछ सेंसरशिप से रिलेटेड जो मैटर थे उसको एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश करना मीन्स क्या होता है? हटा देना। तो ओल्ड रेम टाइम में क्या था? रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज लाइक बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज, ये पब्लिश करने से पहले उन्हें अप्रूव करवाना पड़ता था वहां के किंग से। अब क्या किया गया? नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस टू बी नेचुरल राइट। तो ये पॉइंट है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। तो यहाँ पे कहा गया कि जो भी बात हम कहना चाहते हैं वो हमें फ्रीली कहने का राइट होना चाहिए। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर they traveled rapidly into countryside. They all described and discussed the events and changes taking place in France. Freedom of the press also meant that opposing views of event could be expressed. Each side sought to convince the other of its position through the medium of print. तो प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर जो है वो अब सभी तरह के इवेंट्स को बता सकता था। अपोजिंग व्यू वाली चीजों को भी बताने के लिए उसके पास राइट थे। एंड प्लेज, सॉन्ग, फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्टेड large number of people. This was one of they could grasp and identify with ideas such as liberty, justice, that politically philosophers wrote about at length of text which only a handful of educated people could read. तो प्लेज और सॉन्ग्स के थ्रू जो आइडियाज थे लिबर्टी या जस्टिस के बारे में वो सभी लोगों की जानकारी में अब आने लगे, क्योंकि जो चीज राइटिंग मटेरियल में होगा, टेक्स्ट मटेरियल होगा, तो कुछ लोग जो एजुकेटेड हैं केवल वही पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। अनएजुकेटेड या इलिट पर्सन इन चीजों के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन जब ये राइट आया सेंसरशिप को अबॉलिश करने का, तो लोगों को कई तरह की जानकारियां अब आसानी से मिलने लगी। नाउ वी विल रीड अबाउट द कंक्लूजन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यू कैन सी दिस पिक्चर। दिस पिक्चर शोज द नेपोलियन crossing the Alpha painting. This painting made by David.
सो इन 1804, तो 1789 के बाद अब 1804 की बात यहाँ पे दी है। नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को अब फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया था। ही सेट कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family। तो उन्होंने जो यूरोप के नेबरिंग कंट्रीज थे उनको कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। कई जो डायनेस्टीज थी उनको भी डिस्पोज कर दिया और साथ ही साथ अपने किंगडम को उसने फैलाया और वहां पे अपने फैमिली मेंबर्स को रूल करने के लिए रखा। Napoleon saw his role as modernizer of Europe। तो वो यूरोप को मॉडर्नाइज करने की बात करते थे। He introduced many laws such as protection of private property and a uniform system of weight and measure provided by the decimal system। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट या वेट एंड मेजरिंग के लिए डेसिमल सिस्टम को यूज करना इन्होंने ही यूरोप में स्टार्ट कराया। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, बट सून नेपोलियन आर्मी केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। तो पहले जो नेपोलियन थे सभी को लगता था कि वो लिबरेटर है, सभी के लिए एक सा व्यवहार करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने पावर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। तो 1815 में उनको डिफीट मिला वाटरलू वॉर में। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। नेपोलियन के गुजरने के बाद भी उनके जो आइडियाज थे रेवोल्यूशनरी से रिलेटेड, लिबर्टी और मॉडर्न लॉज के, उन्होंने कई सारी चीजें इंट्रोड्यूस की। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। तो अदर यूरोपियन कंट्री, यूरोप के जो अदर पार्ट्स थे, अदर कंट्रीज थे, उन्होंने भी इन आइडियाज को अडॉप्ट करने की कोशिश की। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अगर कंक्लूजन की हम बात करें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू हमने क्या सीखा, हमने सीखा है लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट, ये सबसे बड़ी बात रही। और फ्रांस में जो ये रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद 19th सेंचुरी में यूरोप के जो अदर कंट्रीज थे उन्होंने भी इन्हीं चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश की और अडॉप्ट किया। इवन हमने भी, एशियन कंट्री में भारत है, हमने भी लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स को अडॉप्ट किया है थ्रू आवर Constitution। So colonized peoples revoked the idea of freedom from the bondage into their movements to create sovereign nation state। Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France। तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय इंडियन थे और उन्होंने, उनके कई जो आइडियाज थे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। राजा राम मोहन रॉय वॉज वन ऑफ दोज हु वॉज इंस्पायर्ड बाय न्यू आइडियाज दैट वर स्प्रेडिंग थ्रू यूरोप एट दैट टाइम। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड लेटर द जुलाई रेवोल्यूशन एक्साइटेड हिज इमेजिनेशन। तो उन्होंने कई सारी चीजें जो इंडिया में सोशल वेलफेयर के लिए की हुई है, उनके पीछे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उन्हीं के थ्रू उनकी इमेजिनेशन में कई बातें आई और उन्होंने उसके थ्रू आगे अच्छा काम करने की कोशिश
इंडिया में, भारत में की।